السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ کا استقبال کرتے ہیں انسانیت ٹیوب چینل میں۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہر بار آپ نے عوام کے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے دیے، اسی طرح ہر بار عوام کے لیے کچھ نہ کچھ سوال اور مسائل آتے ہیں، اس کے جواب آپ دیتے ہیں آپ کے تجربے اور آپ کی پڑھائی کو لے کر۔ ہم نے آپ سے جتنے بھی سوال کیے اس کے الحمدللہ ہمیں جوابات ملے ہیں۔ ابھی جو مسائل چل رہے ہیں امید پورٹل کو لے کے، عوام میں اس کے لیے بھی بہت سارے سوال اور اختلاف رائے جس کو کہا جائے گا، کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ امید پورٹل پہ رجسٹریشن کروانا ضروری ہے، تو وہ کیوں ضروری ہے، اور اگر نہیں کروائیں گے تو اس سے کیا نقصانات ہوں گے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں رہنمائی کریں گے تو جس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ جی، ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہماری مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر تنظیموں نے سپریم کورٹ میں وقف کے متعلق بہت ساری ریڈ کی تھی اور اس کے ججمنٹ بھی آئے، آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اور محنت کی تو آخر میں ایک انٹریم ججمنٹ آیا۔ وہ ججمنٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 4 مدوں کے اوپر اسٹے ہوئے ہیں۔ یہ انٹریم ججمنٹ ہے، لیکن جس وقت جب ججمنٹ آنے والا تھا اس سے پہلے 6 مہینے پہلے سپریم کورٹ نے امید پورٹل کو جو ہے وہ لوگوں میں ڈال دیا تھا کہ اس کے اوپر اپنی ڈیٹیل بھرو۔ اب سوال یہ ہے گا کہ ہم سب رجسٹر ہیں، وقف رجسٹر ہے، اس کے باوجود بھی ہم پھر سے رجسٹر کیوں کروا رہے ہیں؟ تو ہمارے سینئر وکیل جو گجرات میں سب سے ماہر ہے، طاہر بھائی حکیم ہے، اور اوقاف میں بہت لمبے زمانے تک خدمت کرنے والے ہمارے اقبال بھائی شیخ ہے، اور اوپر سے مسلم پرسنل لا بورڈ خود انہوں نے بھی اعلان کیا ہے، جس کی ویڈیوز ہم ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے ہماری اسی چینل کے اندر۔ تو اگر میں ایک بات آپ سے کہوں کہ بھئی گورنمنٹ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں آپ کے کاغذ نکلوانے کے، بالکل کاغذ جب چاہے گی وہ نکلوا دے گی۔ آپ کو اگر کوئی یہ ڈراتا ہے کہ بھئی آپ امید پورٹل پر اپنی ساری ڈیٹیلز ڈالو گے تو حکومت کو معلوم پڑ جائے گی، تو حکومت کو تو یوں بھی معلوم ہونے والا ہے۔ بالکل اگر آپ نہیں بھی کرو گے تو آپ سے بائی فورس بھی وہ کروا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے ان باتوں کو ایوائڈ کرتے ہوئے ہمیں جو اوپر سے مسلم پرسنل لا بورڈ ایک تنظیم ہے، بہت قابل اعتماد تنظیم ہے، ان کے سیکریٹری اور عبد الرحیم مجددی دامت برکاتہم، اور ہمارے یہاں کے ایڈوکیٹ سینئر طاہر حکیم صاحب ہے، اقبال شیخ ہے، اور بھی بہت سارے ایڈوکیٹس ہیں جو اس میدان میں اترے ہوئے ہیں، علماء اترے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ امید پورٹل کے اوپر ری رجسٹریشن کروانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم نہیں کرواتے ری رجسٹریشن تو آپ کو ہم آگے ان سینئروں کی ویڈیوز دکھائیں گے کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ گا کہ کوئی آدمی اگر یوں کہتا ہے پانی آ رہا ہے تو ہم اوپر چڑھ جاویں چھت پہ، پانی نہیں بھی آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم چھت پہ تو محفوظ رہیں گے۔ ہم اپنے ڈاکیومنٹ اچھے طریقے سے اپلوڈ کر دیں گے اور امید پورٹل میں ساری چیزیں ڈال دیں گے، تو ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو اس وقت ہو سکتا ہے گا کہ ہم اپنے ڈاکیومنٹ جمع نہ کریں، اپنے ڈاکیومنٹ کو صحیح طریقے سے ہم اپلوڈ نہ کریں گے تو نقصان ہونے کے 100% چانس ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ دونوں میں سے بہتر کیا چیز ہے؟ کیا اپنے ڈاکیومنٹ کو جمع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بہتر وہ یہ ہے کہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کر دینا چاہیے، جس سے ہماری سیف سائڈ بھی ہو جائے گی اور ہمیں اپنا جو بھی کام کاج ہے وہ بتانے میں اور ظاہر کرنے میں کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، اگر ہم نے کام صحیح سے کیا ہے تو۔ ہاں بالکل، یہی بات کہنی ہے کہ امید پورٹل پر وہ ساری ہم ڈیٹیلز ابھی بھر رہے ہیں۔ بروڈا میں 21 سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں اور نوجوان بچے کام کر رہے ہیں، تو ہم برابر دیکھ رہے ہیں کہ ساری ڈیٹیل جو ہمیں بہت کام لگے گی اور ہمیں سیو کر لے گی یہ ڈیٹیل۔ اور ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اور لا کے مطابق، سپریم کورٹ کے امید پورٹل کے مطابق ری رجسٹریشن نہیں کرواتے ہیں تو پھر وہ رجسٹر نہیں مانا جائے گا۔ جب رجسٹر نہیں مانا جائے گا، اور ہمارے طاہر بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ رجسٹر تو نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر سمجھو کہ آپ کے خلاف کسی نے انکروچمنٹ کیا ہے، کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کیا ہے اور آپ نے امید پورٹل کے اوپر رجسٹر نہیں کیا ہے دوبارہ،
جی पहले से आप रजिस्टर हो हम मानते हैं, جی लेकिन अभी आपको ये क्या कहा गया है कि भाई रजिस्टर करवाओ, लेकिन आपने नहीं किया है, तो आप जो है रजिस्टर भी नहीं कहलाओगे और आप अपने सारे मुद्दों को लेकर कोर्ट में भी नहीं जा सकोगे. मतलब हमारे हाथ में कुछ भी कोर्ट या कायदे से कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं. कोई चीज नहीं रहेगी. इसलिए मैं अब अपनी बात को लंबी ना करते हुए, जो कुछ मैंने अपना नॉलेज लिया हुआ है वो नॉलेज तो हमारे बड़ों के सामने कम है, इसलिए मैं आपके सामने वो वीडियोस पेश करना चाहूंगा जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान भी किया गया है और जनाब ताहिर भाई ने बहुत डिटेल से सारी बातें बताई है, उस पर गौर करने की जरूरत है. और फिर से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि बड़ौदा शहर, जिला और जितने भी हमारे सुनने वाले साथी हैं इंसानी न्यूज़ के थ्रू, वो सब के सब उम्मीद पोर्टल के ऊपर अपने ट्रस्ट को रजिस्टर करवा दें. आप कोई भी ऐसी बात में ना आए कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम करोगे तो फंस जाओगे, ये तो बिल्कुल नासमझी की बात है. हमारे डॉक्यूमेंट अगर हम जमा करवाते हैं तो हम तो सेफ होते हैं, सही. नहीं करवाने पर हम अनसेफ होते हैं. तो डॉक्यूमेंट जमा करवाने में हमको क्या तकलीफ है? अगर हुकूमत के मसले में हमको डर है तो हुकूमत तो कल भी हमारे पास आकर, हमारे मदरसे में, हमारे इदारे में आकर बैठ कर भी हमसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकती है और हमको देने पड़ेंगे. तो फिलहाल हमको जब सामने से ऑर्डर मिला है और एकदम सहूलत के साथ में काम हो सकता है और हमारी सारी प्रॉपर्टी सेफ हो सकती है, तो उसको अभी से सेव कर लेना चाहिए. फिर कल जाकर अगर कोई मसाइल खड़े होते हैं तो जिनके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट है इंशाअल्लाह वो तो मामून रहेंगे, महफूज रहेंगे. ये बातों में आकर कोई बंदे ने उम्मीद पोर्टल पर अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए और कल जो हमारे बड़ों ने कहा उसके मुताबिक फैसला हुआ तो बहुत सारे लोग मुसीबत में फंस सकते हैं. लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने जितने भी ट्रस्ट है उसको री रजिस्टर करवा दे. नुकसान तो होने का चांस ही नहीं है, इसलिए कि नुकसान कैसे हो सकता है कि हम बिल्कुल कंप्लीट कायदे से हमारे डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं, फिर हमको क्या नुकसान होगा? नुकसान तो उसको हो सकेगा कि जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराएगा या जिनके पास डिटेल नहीं होगी उनको नुकसान होगा. चलिए हम आगे सुनते हैं ताहिर भाई हकीम को भी और हमारे मुफ्ती अब्दुल रहीम मुजद्दिदी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे हम सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं और पूरे गुजरात के और पूरे बड़ौदा की और जिले के मुसलमानों की जो वक़फ़ के जिम्मेदार है, ट्रस्टीज है, मुतवल्ली है, उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द उम्मीद पोर्टल पर री रजिस्ट्रेशन करवा कर अपनी ज़मीनों, अपने कब्रिस्तानों, अपनी दरगाहों को, अपनी मस्जिदों को, अपने इदारों को महफूज करने की पूरी पूरी कोशिश करें. बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब. मतलब मुफ्ती साहब की बात का निचोड़ और जवाब ये भी है कि आप अपने बड़ों की राय लीजिए, बड़ों के मशवरे से चलिए. जो समझदार लोग हैं, वकील है, जितने उलमाए दीन है जो इस काम से, इस राब्ते से जुड़े हुए हैं, इस मसले से, उनसे आप मशवरा कीजिए. किसी भी आदमी से मशवरा करने से बेहतर है जो ये बारे में जानता हो उसके साथ मशवरा कीजिए और इस काम को मुकम्मल कीजिए. पोर्टल पे अगर की डिटेल दर्ज नहीं हो रही है तो आप नहीं कर पाओगे, आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस वजह से हम पहले से कह रहे थे कि ये रजिस्ट्रेशन और पोर्टल की जो बात है और इसके साथ में जो जोड़ दिया गया है कि आप दावा नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, बहुत गलत है. इसको किसी भी कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं, किसी कोर्ट में नहीं, क्योंकि आप इस देखिए कायदे के अंदर कुछ लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं. जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट में अगर आप दावा करना चाहते हो तो आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए. इसी तरह से अगर आप वक्फ हो और वक्फ के बिना पर दावा करना चाहते हो तो रजिस्टर्ड वक्फ होनी चाहिए. अगर आप रजिस्टर्ड वक्फ नहीं हो तो आपका दावा कोई कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और उसे वही खारिज हो जाएगा. तो बहुत बड़ा, क्योंकि आज हम देखें जैसे संभल की जामा मस्जिद हुई और भी कई सारे से जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, अगर उनके पास में से पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मुसलमानों का जो हक है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा. इसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा. और आप इसके साथ आप सोचिए कि ये था कि इन्होंने ये कहा कि ये वक्फ एक्ट कमेंट्स हुआ यानी 8/4/2025 के पहले जो वक्फ बाय यूजर रजिस्टर हो चुके हैं वो सब महफूज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन मान्य रहेगा. लेकिन आइंदा के लिए कोई वक्फ बाय यूजर रजिस्टर नहीं होगा. अब जो 8/4/2025 के पहले वक्फ बाय यूजर रजिस्टर हुए तो उन रजिस्टर के किसने वक्फ किया ये डिटेल नहीं है, कब हुआ ये डिटेल नहीं है, कोई डीड नहीं है.
फिर भी वो रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन उनको पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए डिटेल देनी पड़ेगी। तो आप सोचिए, एक जगह आपकी जगह रजिस्टर चलेगा, आप ही की पॉलिसी के अंदर बाने बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है। इसलिए मेरा ये अंदाजा है, और मुझे जहां तक जानकारी है कि कोई रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, और वो इस वजह से इसको बहुत तरमीम करने की जरूरत है, बहुत सुधारा करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हो पाता है तो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ जो दावा नहीं कर पाने की जो हकीकत को जोड़ दिया है वो बहुत खराब है। उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो बहुत लंबा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में तो कई लोग तो ऐसे हैं जो खुद मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, गरिया रहे हैं कि मुसलमान बेवकूफ है, बुजदिल है, रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी बिना वजह भड़काने का काम कर, उन्होंने भी, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी पोर्टल खोलकर देखा हो, कभी कुछ कोशिश की हो अपलोड करने की कोई डॉक्यूमेंट। कोशिश करी है नहीं करी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं कि अगर जो भी ऐसा दावे कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आपने कितने रजिस्टर करवाए। और इसीलिए देखिए हमने कोशिश की, मैं ये आपके जरिए ये लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमको मुतालबा करना चाहिए। अगर मुतवलियों की जिम्मेदारी है कि रजिस्टर करवाएं, पोर्टल पे भी डिटेल दर्ज करवाएं, तो हमारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, तो ये वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि भाई वो भी देखें कि हमारे वहां जो वक्फ रजिस्टर्ड है उनकी डिटेल्स पोर्टल पे दर्ज हो, और नहीं हो पा रही तो अगर हमारी गलती है तो उनकी भी गलती है। बिल्कुल, तो उनकी जिम्मेदारी के बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा, ना वो कुछ कर रहे हैं। अब हमने चाहते हैं, हम ये कोशिश करेंगे, और हो सका तो उसके लिए कोर्ट का भी रास्ता में इख्तियार करेंगे कि वक्फ बोर्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की जाए, ये उनके ऊपर कहा जाए कि आप लोगों को पोर्टल पे रजिस्टर करवाने में पूरी मदद करो, आपके नुमाइंदे भेजो ताकि वो रजिस्टर करवाने की कोशिश करें। हम उनको सारी डिटेल देंगे जो हमारे पास है, और जो आपके वहां दर्ज है क्योंकि रजिस्टर्ड है तो वो हम देंगे। आप कोशिश करो, हो जाए तो अल्लाह ताला का खैर है और आप कर पाए, और नहीं होता आपकी गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। रजिस्टर पहले से ही हम तो और आपकी गलती अगर नहीं हो, और आपकी गलती क्योंकि बोर्ड अगर खुद भी चाहे तो आज मेरा ये दावा है कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब इतने वक्त में इतना सब हो गया, इतना कम हो सका है, तो आगे तो इसमें कम से कम 1.5-2 साल और लग जाएंगे इसके अंदर तो पूरा, अगर तरीके से अगर करना चाहें तो बिल्कुल। और लेकिन वो भी जैसे आप बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो मैं किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया, वो तो आप 2 साल बाद भी कहां से ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। और इसीलिए वक्फ बोर्ड को के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम मुतवल्ली हैं या आप उस वक्त के साथ जुड़े हुए हैं कि हमारी उसकी डिटेल्स रजिस्टर हो, पोर्टल पे आए। लेकिन बोर्ड की भी जिम्मेदारी है क्योंकि हम तो इंतजाम करने वाले हैं। मुतवल्ली मैनेजर होता है, बोर्ड कौन है, वो निगहबान है, वो सुपरवाइजर है, उनको सब करना है, तो उनको करना है, तो ये उनकी जिम्मेदारी उनको भी अदा करनी चाहिए। तो हमको ये मुतालबा करना चाहिए, और ये ना समझे कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है, बोर्ड से मुतालबा करें ताकि बोर्ड ये करवाए। तो ये जैसे कई लोग ये कहते हैं, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ टोपी पहनकर रैलियों में जाकर मुसलमान अपने आप को बता देते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को डरा रहा है, ओवैसी मुसलमानों को डरा रहा है कि जमीनें छीन ली जाएगी आपकी। लेकिन हकीकत जो बता रहे हैं, जो स्टार्टिंग के अंदर उम्मीद पोर्टल पर जो चीजें मांगी गई, किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया, वो तमाम डिटेल दो, 700-800 साल पुराना आप डिटेल नहीं लाते हैं तो आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, आपका दावा खारिज हो जाएगा। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो मुसलमान बुद्धिजीवी जो लोग बता रहे हैं जो खतरा है वो लाहक वो खतरा है, यानी मुसलमानों पर और बिल्कुल है। आज मैं ये कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया, वचगाड़े का हुक्म दिया, हम ये भी एक गलतफहमी लोगों की दूर करना चाहते हैं कि लोग आज जो ऑर्डर हुआ इससे नाउम्मीद हो गए, मायूस हो गए कि सब खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल हियरिंग हो गई इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन हम हियरिंग कर पाए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख पाए, क्योंकि उम्मीद रखना भी ईमान का एक हिस्सा है। अगर आप नाउम्मीद हो जाते हैं तो आप अल्लाह ताला पे, आपका और तकदीर पे ईमान नहीं रखते। तो उम्मीद रखनी है इंशाल्लाह खैर और बेहतर होगा। अब वो क्या होता आखिर में अल्लाह जानता। आज इंटरिम ऑर्डर मिला है, अल्लाह का एहसान मानना चाहिए हमें कि आज सरकार के बहुत सारे गलत मंशा जो थी उनकी उन पे रोक आ गई है। जैसे कि कौन से आप देखिए, ऐसा था कि सरकार जो अमेंडेड एक्ट था वो ये कहता था कि जो मिल्कियत सरकार ने दावा कर दिया कि हमारी मिल्कियत है तो वो सरकारी मिल्कियत हो जाएगी। उस दिन से उस मिल्कियत की जो शनाख्त, जो आइडेंटिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगी, उसका इस्तेमाल होना वक्फ के तौर पे खत्म हो जाएगा, और उसको फैसला करेगा या तो पहले कलेक्टर कहा था, फिर कहा कलेक्टर से उपला अधिकारी करेगा। अगर वो करता तो क्या फैसला करता हम जानते थे। बिल्कुल। आज इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी
वजगाड़े के हुक्म से, फाइनल ऑर्डर नहीं लेकिन वजगाड़े के हुक्म से, इंटरिम ऑर्डर से ये कहा कि अगर कोई मिल्कियत पे सरकार दावा करती है कि ये वक्फ नहीं है, सरकारी मिल्कियत है, तो वो मिल्कियत की शनाख्त और आइडेंटिफिकेशन आज भी वक्फ के तौर पे रहेगी। दावा करने के बावजूद उसका इस्तेमाल भी वक्फ की मिल्कियत के तौर पे होता रहेगा, दावा करने के बावजूद। हाँ। और उसका फैसला जो ये झगड़ा है कि सरकारी है कि वक्फ की है, ये सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे लेकिन ट्राइब्यूनल करेगी, और ट्राइब्यूनल का फैसला भी हाई कोर्ट उसके मातहत होगी, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये, और उस दरमियान ये मिल्कियत का वक्फ के तौर पे शनाख्त भी बरकरार रहेगी और इस्तेमाल भी होता रहेगा। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कितनी हमको नेमत मिली है आज। और दूसरा, बोर्ड के भी जो थे कि बोर्ड में ये कहा कि कम से ज्यादा 3 हिंदू हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, सॉरी, और काउंसिल में भी ज्यादा 4 हो सकते हैं, जबकि काउंसिल में 22 टोटल मेंबर है, 4 है तो कोई इंशाल्लाह कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। और बोर्ड के अंदर भी 7 से ज्यादा मेंबर होते हैं, तो 3 अगर ज्यादा है तो उससे भी कोई नुकसान नहीं होता। सीईओ का एक है कि वो ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमान हो, ये आपको देखना है, उसके बारे में कोशिश करें। आज इंटरिम ऑर्डर में अल्लाह ताला बहुत राहत दी है, और मैं ये मानता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया है, और अल्लाह ताला हमसे ये तवक्को करता है कि हम अल्लाह ताला की और बंदगी करें और उससे मांगे, इल्तिजा करें, तो इंशाल्लाह और भी मिलेगा। तो आज हमको बहुत राहत मिली, नहीं तो हमारे को क्या नुकसान हो जाता। आप बहुत सोचिए कि आज संभल की मस्जिद है, ज्ञान व्यापी है, काशी मथुरा वाला जो डिस्प्यूट है कि सरकार ने दावा कर दिया, किसी ने दावा कर दिया तो हमारी मिल्कियत खत्म हो जाती, वो आज रोक लग गई है कि जब तक केस कार्यवाही चलेगी वहां तक वो बरकरार रहेगी। तो ये अल्लाह तआला के करम से बहुत अच्छी एक राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ ये उम्मीद पोर्टल पर अगर वो लोग नहीं डॉक्यूमेंट दे पाए तो उनका दावा खत्म हो जाएगा। वही, इसी अब वो क्या है कि ये दोनों चीज, या तो मुसलमानों को यहाँ से नहीं तो यहाँ से पकड़ा, इस तरह का कुछ ये है कि मुसलमानों को ये है कि जिंदगी भर जद्दोजहद करनी है। अल्लाह ताला ने जो जद्दोजहद करने भेजा है वो अब शुरू वो करनी है, अगर आपकी आखिरत बनानी है तो। बिल्कुल, आप इस तरह से हाथ पे हाथ रखे या सो नहीं जा सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब अल्लाह ताला देखेगा। कुछ जद्दोजहद करनी है, और वो जद्दोजहद करके आपकी दुनिया और आखिरत बनानी है, ताकि आप अल्लाह ताला को जाके एक जवाब दे सके कि ये अल्लाह ताला की मिल्कियतें हैं, वक्फ मिल्कियत मेरी और आपकी नहीं है, हम उसके मालिक नहीं है, अल्लाह ताला उसका मालिक है। तो हमको हमारी कोशिश करनी है कि हम अल्लाह ताला की वो मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ कर सकें हम करें, ताकि अल्लाह ताला को जवाब दे सके कि हमने ये कोशिश की। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं 2014 के बाद से कि हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिम आक्रांता आए थे, उन्होंने मंदिरें तोड़े और मस्जिदें बनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था बाबरी मस्जिद पर, उसमें साफ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कोई सबूत साक्ष्य नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया है। दूसरी तरफ ये जिस तरीके से जो वक्फ का और उम्मीद पोर्टल चल रहा है, कोशिशें यही की जा रही है कि भाई मुसलमान के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुसलमान तो जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक ये, दूसरा इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट जो है, जब उसमें साफ कह दिया गया है कि जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ में अब कन्फ्लिक्ट करेगा, इस कानून के साथ में। देखिए, वो कन्फ्लिक्ट तो करेगा। बेसिकली उन्होंने कर क्या दिया है कि हर मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर एक डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, और आपको और आपकी आल और औलाद को वो डिस्प्यूट को हल करने का चक्कर में डाल दिया है। तो मुसलमान अपने दिनों रात पीढ़ियां भी इसमें उलझ जाए और करते रहे यार, उलझे रहे, चाहे वो पिराना का मामला हो, चाहे वो खंभात का मामला हो, चाहे वो पाटन का मामला हो, कोई भी मामले हो, उसको सबको डिस्प्यूट में डाल दिया और ये उलझन में डाल दिया, ताकि उलझन चलती रहे, उलझते रहे लोग और एक मुद्दा चलता रहे। क्योंकि बेसिकली है क्या, ऐसे मुद्दे रहेंगे तो लोग रिलीजियस लाइन पे पोलराइज्ड होंगे, और वो पोलराइज होंगे तो आप जानते हैं किसको क्या फायदा होता है, नुकसान होता है। तो वो पोलराइजेशन को बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये किया है, और कोई इनका इंटेंशन नहीं है, ना वक्फ की प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता आया हूं कि हर एक्ट होता है वो ये कहता है कि ये एक्ट किस के लिए बनाया गया और क्या है। मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसकी मिसाल देता हूं कि भाई उसमें ये है, वो ये कहता है कि चेक क्या होता है, हुंडी क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो वो बताता है कि ये बिल होता है, ये चेक होता है, ये सारी चीजें बताता है। ये वक्फ उम्मीद जो एक्ट आया है, वो पूरा एक्ट ये कहता है कि ये चीज वक्फ नहीं है। आप सोचिए कि एक्ट ये होना चाहिए, ये कहे कि वक्फ क्या है, आपको नकारने के लिए बनाया गया, नेगेटिव इंटेंशन से एक्ट बनाया गया है कि ये वक्फ नहीं है,
اگر سرکار نے کلیم کیا تو وقف نہیں, ASI نے کلیم کیا تو وقف نہیں, شیڈیول ٹرائب ایریا میں ہے تو وقف نہیں, گورنمنٹ. تو یہ ساری چیزیں, اور یہ کہ بھئی اگر یوز نہیں ہو رہی تھی وقف نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں تو وقف نہیں ہے. تو یہ آپ کسی اینگل سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقف کے اور وقف انتظام کے لیے, اس کی بہتری کے لیے بنایا گیا. یہ امینڈمنٹ جو لایا گیا وہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ وقف کی حیثیت اور وقف کے جو ساتھ میں جو مذہبی جو پہلو جڑا ہوا ہے مسلمانوں کے وجود کو مٹانا اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو ڈسپیوٹ میں ڈالنے کے لیے, تاکہ آپ زندگی بھر یہی کرتے ہیں. لیکن جو مسلمان کوشش کرنا چاہ رہے ہیں ان کو امید پہ جا کر کوشش کرنی چاہیے رجسٹر کرنے کی. بالکل کرنی چاہیے. دیکھیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے امید پورٹل پہ گیا, میں نے میری ID کریٹ کری, مجھے OTP آیا, OTP آنے کے بعد میں نے ڈیٹیل درج کرنے کی کوشش کی لیکن درج نہیں ہوئی ہے. یہ آپ کو بتلانا ہے تاکہ کل جا کے کوئی یہ کہے کہ آپ نے امید پورٹل پہ جانے کی کوشش ہی نہیں کی, تو آپ اس کو بتا سکتے دیکھو یہ سب میں نے کیا, کیونکہ یہ پروسیس پورا نہیں ہونے والا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو گھر کی لائٹ لینی ہے, تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے الیکٹریسٹی بورڈ گیا, میں نے عرضی کری, عرضی کر کے میں نے جو پیسے بھرنے کے تھے وہ بھرے, لیکن آج مجھے الیکٹریسٹی کنیکشن نہیں ملا ہے. تو میں اگر اس کے بعد اللہ نہ کرے چوری نہیں کر رہا, غلطی سے نہیں کر رہا, لیکن نہیں ہوا لائٹ ہے, تو میں کیا کروں گا؟ لائٹ کے میں کروں گا. آپ میں کوشش کرو, لائٹ میرے کو ملی نہیں رہی ہے لیگلی, تو کوشش تو دکھا سکتے ہو میں نے کیا ہے. تو آپ کو یہ دکھانا ہے کہ میں نے پورٹل پہ جا کر ساری کوشش کی, لیکن ہمارے پورٹل پہ جا کر رجسٹر نہیں ہو پایا. اسی لیے دوبارہ میں دوہرا رہا ہوں کہ یہ کوشش کرنی ہے وقف بورڈ کو, تاکہ ہم بتائیں کہ ہم وقف بورڈ کے پاس گئے, وقف بورڈ نے کوشش کی, ان کی کوشش کے باوجود یہ رجسٹر نہیں ہو پایا. تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی کیا یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وقف بورڈ کو ہی ذمہ داریاں دی جائے ہر اسٹیٹ کے اندر کہ وہ رجسٹر کروائیں؟ انشاءاللہ یہ ہوگا, کیونکہ ہم اس پہ بہت غور و فکر کر رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں, اور جس طرح اسد بھائی نے جو پٹیشن فائل کی ہے اپلیکیشن, اس طرح پرسنل لا بورڈ بھی ایک اپلیکیشن فائل کرنے کے پروسیس میں ہے, اور پورے ہندوستان بھر سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی کیا ایکسپیرینسز ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اس کو شامل کر کے ایک سبسٹینٹیو کمپریہنسو اپلیکیشن کی جائے تاکہ یہ ساری باتیں سپریم کورٹ کے سامنے آنے والے دنوں میں اور راحت اس میں مل سکتی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش پہ لگے رہیں گے. دیکھیے ہمارا ذمہ کوشش کرنا ہے, ہم ضرور کوشش کریں گے. بالکل, اور کوشش کرنے والے کے ساتھ تو بالکل اللہ ہوتا ہی ہے, کوشش کریں آپ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. بالکل, بے شک. بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. میری آواز ٹھیک نہیں تھی, پھر بھی میں نے کہا کہ چلیے یہ بات امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس کے باوجود آپ آئے, آپ سے میں نے وقت لیا, کیونکہ یہ مدعا ایسا تھا کہ ہر کوئی اٹھ کے ویڈیو بنا دے رہا ہے, کچھ ہی بتا دے رہا ہے, کسی کو کچھ نالج ہے نہیں. چونکہ میرے خیال سے کیا حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ سے بہتر بندہ وقف معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہوگا جو اتنا ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا سکے. دیکھیے اگر میں نے جو کچھ اچھا کہا ہے, اگر وہ بات اچھی اور صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اور غلطی ہے تو میری طرف سے ہے. میں نے کوشش ضرور کی.